Look at the given pictures. Which game do they depict? Name of the games are given below. Write the correct name of the game under the picture. First, cricket. Second, badminton. Third, football. Fourth, hockey. Fifth, cycling. Sixth, swimming. Which game do you like the most? Now, some games are played individually by a single player, but in other games, more than one player form a team. Let's list the games which are played individually and which are played as a team. The games that are played individually are javelin throw, shooting, archery, and many more. And the games that are played as a team are hockey, cricket, football, and many more. Taking part in games develop a number of qualities such as confidence. गेम खेलने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है. एक्सेप्टिंग डिफीट, कि कई बार अगर हम हार भी जाएं तो उस हार को एक्सेप्ट करना भी हम सीखते हैं. हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एट्सेट्रा. वी लर्न कोऑपरेशन, एसोसिएशन एंड कोऑर्डिनेशन, कि हम कैसे दूसरों की मदद करें, कैसे एक संगठन बनाएं और कैसे उनके साथ मिल के चलें. वाइल प्लेइंग एज अ टीम. चिल्ड्रन इन स्कूल्स. गेम्स आर फॉलोड बाय ब्लॉक लेवल, जिस पे एक डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा पार्ट जो होता है वहाँ पे गेम्स होती हैं. देन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, then to the state level, national level, and if you are a good player, you can reach to the international level. For example, Olympic Games, Commonwealth Games, and Asian Games. Olympics are international level games in which players from different countries take part. These are held after every 4 years. हर 4 साल बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं. Taking part in these games is a big achievement. In the same manner, Asian and Commonwealth game, जो एशियन कॉन्टिनेंट में होती हैं, या कॉमनवेल्थ गेम वो होती हैं जिसमें वो सभी कंट्रीज़ भाग लेती हैं जो ब्रिटिश राज का पार्ट रही थी या ब्रिटिश रूल के अंडर रही थी. So, taking part in these games is a big achievement. In the same manner, Asian and Commonwealth games are also international level games. Who is your favorite player? From the last few years, sport meets are being organized for differently abled people. They show their talent. They develop self-confidence in them. Paralympics is one of such category. Now you can see in this picture that there is a person who is going to lift that heavy weight, is not having abled legs. So such type of player take part in Paralympic games. Now we will make a mind map. We have to write all the games that are played as a team. First cricket, then hockey, football, rugby, kabaddi and kho-kho. Now this is the picture of P.T. Usha. P.T. Usha is an international athlete and also the first Indian woman to enter in Olympics. तो पीटी उषा पहली वो भारतीय थी जिसने ओलंपिक्स में भाग लिया. In 1984, she was about to get the bronze medal but missed it with a little difference of 1/100 second. सिर्फ छोटे से डिफरेंस से पीटी उषा ब्राउन मेडल लेने से चूक गई. पीटी उषा इज आल्सो नोन एज द स्प्लिंट क्वीन. नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ कर्णम मल्लेश्वरी. कर्णम मल्लेश्वरी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन ओलंपिक गेम्स. पहली बार किसी भारतीय महिला ने ओलंपिक गेम्स में एक मेडल जीता था. Here are some facts about the autobiography of another international player, Milkha Singh, known as Flying Sikh. You can see in the picture the person named Milkha Singh,
who is also known as flying sick. My father, और वो क्या लिखते हैं, My father, सरदार संपूर्ण सिंह, was a very simple person. मिल्खा सिंह के जो फादर थे वो बहुत ही एक साधारण इंसान थे. He had a little knowledge of Punjabi, but still he tried his best to educate his children. चाहे कि वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए. किसानी उनके पूर्वजों का हमेशा एक धंधा रहा. We were 5 brothers and 3 sisters. मिल्खा सिंह 5 भाई थे और 3 उनकी बहनें थीं. उनके सिर्फ 2 रूम थे जिनमें से एक रूम में वो अपने पशुओं को बांधते थे. आफ्टर पासिंग क्लास 4th फ्रॉम द विलेज स्कूल आई वेंट टू अ सिटी स्कूल फॉर फर्दर स्टडीज़. तो 4 साल उन्होंने अपने गांव में ही पढ़ाई की. उसके बाद वो शहर चले गए. देयर वॉज अनदर बॉय फ्रॉम द माई विलेज. बोथ ऑफ अस यूज्ड टू वेक अप एट 4 o'clock in the morning. After getting ready for school, we would reach the school at the prayer time after walking a distance of 6 koh. It is almost around 14 to 15 किलोमीटर. जो उनका स्कूल था वो उनके घर से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने स्कूल सुबह 4 बजे उठ के जाया करते थे. एंड देन हैपन द मैस्कर ऑफ 1947. तो इसी टाइम के बीच भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ. Our house and the houses of thousands of people of our village were destroyed in the riots. इस समय के दौरान मिल्खा सिंह और मिल्खा सिंह के जैसे बहुत से लोग जो थे उस समय में उनके घर तबाह कर दिए गए. Some of our family members and many other villagers were either killed or were missing. बहुत सारे लोग गुम हो गए और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया. But somehow I reached Delhi. तो जैसे तैसे करके मिल्खा सिंह किसी तरह से दिल्ली पहुँचे. आई स्टार्टेड रनिंग इन 1952 आफ्टर माई रिक्रूटमेंट इन द आर्मी. तो मिल्खा सिंह ने एज अ रनर तब भागना शुरू किया जब वो आर्मी में भर्ती हो गए. आर टीचर्स सरदार गुरदेव सिंह हु हिमसेल्फ वाज एन एथलीट वाज अ हार्ड टास्क मास्टर. उनके जो गुरु थे गुरदेव सिंह वो बहुत ही सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति थे. When I took part in national games held at Patiala, first time I saw women taking part in the games. Women's participation in games appeared very strange to Milkha Singh. लेकिन औरतों को भाग लेते हुए देख के मिल्खा सिंह बहुत हैरान हुए. Because in those time society did not like women to take part in games. क्योंकि उस समय में औरतें खेलों में भाग नहीं लेती थी. इज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन गेम्स डिसलाइक्ड नाउ अ डेज. क्या आज भी लोग औरतों का गेम्स में भाग लेना पसंद करते हैं या नहीं? इज इट राइट टू डू सो. क्या ये करना सही है? वट डू यू थिंक अबाउट इट? सो हम मिल्खा सिंह की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. वो क्या कह रहे हैं? आई इंक्रीज माई प्रैक्टिस डे बाई डे एंड आई वॉन मैनी रेसेस. एट लास्ट आई वॉज चूजन फॉर ओलंपिक्स which were to be held in Melbourne City in Australia. तो किसी तरह से मिल्खा सिंह ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, अपना हार्ड वर्क जारी रखा और वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले ओलंपिक्स में जो वहाँ की मेलबर्न सिटी में होने थे उसमें उसके लिए उनको चूज़ किया गया. माई परफॉर्मेंस इन दीज गेम्स वॉज नॉट सो गुड बट आई गोट द अपॉर्चुनिटी टू सी मैनी एथलीट्स ऑफ द वर्ल्ड, गॉट मोटिवेशन फ्रॉम देम एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम. हालांकि उन खेलों में मिल्खा सिंह कुछ अच्छा नहीं कर सके लेकिन बहुत से अपने जैसे एथलीट्स को देख के, प्लेयर्स को देख के उन्होंने बहुत कुछ सीखा. और यही मैटर करता है कि जब हम किसी भी चीज़ में भाग लेते हैं चाहे हम जीत ना पाएँ लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. पीरियड ऑफ 1956 to 1957 वाज अ पीरियड ऑफ वेरी हार्ड वर्क. तो 1956 से 1957 तक का जो समय था वह बहुत ही सख्त मेहनत का समय था. ड्यूरिंग दिस पीरियड आई हैड फॉरगॉटन माई सेल्फ. इन 1958 आई वॉन 400 मीटर रेस इन एशियन गेम्स held in Tokyo, the capital city of Japan, and when it was announced that Milkha Singh has won this race with the new record of 46.6 seconds, the stadium echoed with the loud applause. तो
इस समय के दौरान मिल्खा सिंह की हुई सख्त मेहनत ने उनको इसका फल भी दिया। 1958 में जापान के कैपिटल शहर टोक्यो में जब एशियन गेम्स हुए तो मिल्खा सिंह ने नए रिकॉर्ड के साथ 400 मीटर की रेस को जीता, जिसके बाद जो स्टेडियम था तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। द किंग ऑफ जापान ऑनर्ड मी विद अ मेडल एंड तिरंगा वाज रेस्ड विद द ट्यून ऑफ our national anthem Jan Gan Man. I reminded the sacrifices of our freedom fighter. Then I also won 200-meter race in these games. तो 400 मीटर की रेस जीतने के बाद जब जापान के उस समय के जो राजा थे उन्होंने मिल्खा सिंह को मेडल दिया, तो इसके साथ ही देश का तिरंगा झंडा भी लहराया गया और तब जन गण मन का राष्ट्रीय गीत चला, जिसे सुनते वक्त मिल्खा सिंह ने अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद किया। ऑन माई अराइवल बैक टू इंडिया, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पैटेड माई शोल्डर एंड सेड, माई सन, यू हैव मेड द कंट्री प्राउड, कीप अप योर हार्ड वर्क, यू हैव येट टू राइज टू द इंटरनेशनल लेवल। तो जब मिल्खा सिंह इतनी उपलब्धियां हासिल करके भारत वापस लौटे तो तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह को शाबाशी दी और कहा कि पूरा देश तुम पे गर्व करता है, अपनी मेहनत को जारी रखो और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक अपने आप को लेके जाओ। आफ्टर दैट आई वॉन 400 मीटर रेस इन कॉमनवेल्थ गेम्स आल्सो। उसके बाद मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की रेस भी जीती। ड्यूरिंग दिस गेम्स इन इंग्लैंड व्हेन आई फेल्ट डिप्रेस्ड, माई कोच डॉक्टर हावर्ड कंसल्ड me for the whole night and boosted my morale. His love and leadership got my success. इंग्लैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए उसमें मिल्खा सिंह कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन उनके कोच ने उनकी हौसला अफजाई की और फिर से उन्हें मोटिवेट किया। Here too I won in 1960. There was an invitation from Pakistan for the Indian team. Here I won 200-meter race in 20.7 seconds. This was the world record. I was glad to touch this. After winning, when I was running around the stadium, it was announced, Milkha Singh, who is passing by you, has not run but flown. We honor him with the title Flying Sikh. After that, I became popular in the world as Flying Sikh. 1960 में जब पाकिस्तान ने इंडियन टीम को इनवाइट किया तो मिल्खा सिंह ने वहाँ पे भी 20.7 सेकंड के समय को लेते हुए 200 मीटर रेस को जीता। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुई, मिल्खा सिंह जो आपके पास से गुजर रहा है वो भाग नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। और इसी वजह से उन्होंने मिल्खा सिंह को एक नया नाम दिया जो था फ्लाइंग सिख। और इस तरह से मिल्खा सिंह पूरे वर्ल्ड में एज अ फ्लाइंग सिख मशहूर हो गए। सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, क्या लिखते हैं मिल्खा सिंह कि क्या मंत्रा होता है जीतने का ज़िंदगी में। तो क्या लिखते हैं मिल्खा सिंह, आई यूज टू रन फॉर 7 days in 1 week and 365 days in a year. During this period of struggle, I neither took my training lightly, nor did I let laziness overpower me. तो सख्त मेहनत का मंत्रा देते हुए मिल्खा सिंह बताते हैं कि वो हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन अपनी ट्रेनिंग करते थे और कभी भी उन्होंने अपने आप को सुस्त नहीं होने दिया। तो इसीलिए उनकी इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें लगातार बिना थके सख्त मेहनत करनी चाहिए और यही जीवन में तरक्की हासिल करने का या सक्सेस हासिल करने का एक ही मंत्र है। और ये सिर्फ गेम्स में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है कि अगर हम बिना थके सख्त मेहनत करें तो हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। A sport mascot is decided for the games played at the higher levels. For example, sport mascot Appu in the Asian Games of 1982. तो फर्स्ट पिक्चर में आप एक एलिफेंट की तस्वीर देख रहे हो जिसका नाम के अप्पू है। भारत में हुई एशियन गेम्स जो 1982 में हुई थी उसका मैस्कट था। जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुई थी उसका मैस्कट शेरा था। और तीसरा जो लोगो आप देख रहे हो वो सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट ओलंपिक का लोगो है।
In the last, things to remember. First, games teach us cooperation, association and coordination. जो खेल हैं हमें सिखाते हैं आपस में सहयोग करना, आपस में मिलजुल के रहना और एक दूसरे के साथ मिल के चलना. पैरा ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल. जो लोग शारीरिक तौर पे इतने सक्षम नहीं होते उनके लिए भी गेम्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिनको पैरा ओलंपिक्स बोला जाता है. थर्ड पॉइंट है ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 4 years. तो दुनिया का सबसे बड़ा एथलीट और गेम्स इवेंट जो ओलंपिक गेम्स है हर 4 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है. हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. फोर्थ पॉइंट है कि इंडिया का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है. थैंक यू.